Good morning, students. This is your lesson number 12 in MS, Go for Greenery. This is your last chapter in MS, but only 1 to 7 chapter will come in the third term examination. So here is your last chapter, 12, Go for Greenery. Let's start this. Our Earth is a beautiful planet. Mother Earth is very good and caring towards us. But we the human beings harm the earth. We are overusing the resources and creating pollution. This is harming the earth as well as the life on earth. Yeah, go for greenery. It means that we should go for greenery. हमें नेचर को सपोर्ट करना है, ओके, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन अर्थ. अर्थ इज नॉट बिलोंग टू अस बट वी बिलोंग टू अर्थ. ठीक है, ओके. अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, we belong to the earth. So this earth is a very beautiful planet, and on that earth, on this planet we are living. So mother earth is very good and caring towards us. हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी मीन्स अर्थ पे रहते हैं, and earth is very favorable for the human beings, so we are living here. So बट वी द ह्यूमन बींग्स हार्म द अर्थ. लेकिन हम पृथ्वी से, हमें अर्थ से हमें बहुत कुछ मिलता है. सारे जो कंडीशन हैं जो एक ह्यूमन बींग को सर्वाइवल के लिए चाहिए, सब कुछ उसे अर्थ से मिलता है. लेकिन फिर भी वी आर ह्यूमन, वी आर हार्मिंग द अर्थ. वेयर वी आर लिविंग वी आर हार्मिंग द अर्थ. हम इस अर्थ को हार्म कर रहे हैं. वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग पॉल्यूशन. जो भी रिसोर्सेज इस पृथ्वी पर हमारे सर्वाइवल के लिए हैं, उसका हम मिसयूज़ कर रहे हैं. ठीक है, उन्हें हम ख़त्म कर रहे हैं. एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशन. दिस इज़ हार्मिंग द अर्थ एज वेल एज द लाइफ ऑन अर्थ. ये अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही साथ जो जीवन इस पृथ्वी पर है उसे भी नुकसान पहुंचा रहा है. Here is a story given related to this lesson, Go for Greenery. See, the words of Mother Earth, यानी कि मदर अर्थ के बोले गए शब्द. Here is a play. When you will read, then it will be clear to you about the story. See. It was 22nd April. A girl of class 2nd also participated in the Earth's Day program. Yeah, on every year's 22nd, okay, April, we celebrate Earth's Day. Okay, so a girl of class 2nd also participated in the Earth's Day program. She became Mother Earth. A girl, she is studying in class 2nd and she participated in the Earth Day program, and she became a Mother Earth. And when her turn came, she went to the stage. और जब उसका टर्न आता है तो she went to the stage and see what she said there. She started, I am Mother Earth. Okay, मैं माँ पृथ्वी माता हूँ. I was happy in the past, but now I have become very sad. The Mother Earth said that in the past time, okay, I was very much happy, but now I am very sad. Why? Because today my children are hurting me a lot. वो कहती हैं कि आज जो मेरे बच्चे हैं मुझे बहुत ही हर तरीके से हर्ट कर रहे हैं, मुझे हार्म पहुंचा रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी गुड टू मी. मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब मेरे प्रति अच्छे हो जाओ. अ चाइल्ड आस्क्ड मदर, एक बच्चे ने पूछा मदर, हाउ कैन वी बी गुड टूवर्ड्स यू. हम आपके प्रति कैसे अच्छे बन सकते हैं. टेल अस द वेज इन विच वी कैन शो केयर टूवर्ड्स यू. The child asks, just mother, tell us the ways. How can we become good to you? How can we become
how can we take care towards you so that we are not harmed. Okay. The Mother Earth replied, to be good to me, how can the people can good towards mother? So she is given the ways. You should not cut trees, it hurts me and reduce my greenery. Mother Earth said that you should, आपको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ये मुझे हर्ट करते, मुझे दुखी करते हैं और साथ ही साथ मेरी ग्रीनरी को, मेरी हरियाली को ये ख़त्म कर रहे हैं. सेकंड, यू शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए. ठीक है. ट्रीज आर योर ग्रीन फ्रेंड्स, और जो पेड़ हैं क्या है आपके, उन्हें हम ग्रीन फ्रेंड्स कहते हैं, बिकॉज दे गिव अस कूल शेड, दे गिव अस फूड, दे गिव अस वुड, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ग्रीन फ्रेंड्स. क्या, यू शुड नॉट pollute the air. Mother Earth said to child that you should not pollute the air, आपको हवा को दूषित polluted नहीं करना चाहिए. You should reduce the use of vehicles so that less smoke is released into the atmosphere. How can we stop polluting the air? Mother said that if we will reduce the use of vehicle, अगर हम व्हीकल का इस्तेमाल करना कम कर दें तो उसमें से जो स्मोक निकलता है वो कम होगा और एटमॉस्फेयर हमारा पॉल्यूटेड नहीं होगा. यू शुड वॉक और यूज़ बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, और छोटे डिस्टेंस के लिए वी शुड प्रेफर, हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, या तो हम पैदल जा सकते हैं या फिर हम बाइसिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके. You should not throw waste in water bodies. It kills fishes and other animals. Yeah, जो भी वाटर पोल्यूशन कैसा होता है, बिकॉज जो केमिकल वेस्ट रिलीज होती है वाटर में, और जो फैक्ट्रीज जो घर के गार्बेजेस होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, वो सब वाटर बॉडीज़ में जाते हैं. एंड जितने भी जो वाटर बॉडीज़ की वजह से जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, kills the animals like fish and plant that are found in water, so we should not throw it into the water bodies. Okay. Do not waste water at all, और हमें पानी को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए. Save it as much as you can, और आपको जितना हो सके पानी को बचाकर संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. Use the 3R strategy. Reduce your requirements, reuse the things, and give for recycle the empty cans, etc. हर किसी को 3R strategy को यूज़ करना चाहिए. 3R strategy, what is this 3R strategy? हाँ, क्या है? Reduce your requirement, अब जो भी आपकी आवश्यकता है थोड़ा सा कम करें, ठीक है ना. और reuse the things, और चीज़ों को कोशिश करें दोबारा उसे इस्तेमाल करने की. एंड गिव फॉर रिसाइकिल द एम्प्टी कैंस, और रिसाइकिल के लिए जो एम्प्टी कैंस है उन्हें हम दे सकते हैं. ये 3R स्ट्रैटेजी है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. 3R स्ट्रैटेजी रिड्यूस पॉल्यूशन अप टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, और इसका हम इस्तेमाल करके, इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करके हम पॉल्यूशन को बहुत कम कर सकते हैं. एवरीवन शुड यूज़ दिस 3R स्ट्रैटेजी. व्हाट इज दिस? रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. ओके. As Mother Earth completed her words, the audience stood up and clapped. और जैसे ही पृथ्वी माता ने अपने वर्ड्स को कंप्लीट किया, जो ऑडियंस थी वहाँ पे, जो स्टेज को, जिस प्रोग्राम को देख रही थी, बिकॉज इट वॉज अ प्ले एंड क्लास सेकेंड गर्ल, शी वॉज पार्टिसिपेटेड इन दिस प्ले एंड शी बिकेम अ मदर अर्थ. एंड देन आफ्टर शी गोइंग ऑन स्टेज, शी वेंट टू द स्टेज एंड शी स्टार्ट गिविंग द lecture. They start giving her the words. Then as she stopped, completed her words, the audience, those who are watching her, they stood up and they clapped, and then later the girl got the first prize. Okay, so here in this, basically in this chapter you will come to know, आपने जाना होगा कि how we can save our
environment. And if we will save our environment, we will save the earth, and also we will save our life also. So it is very very important for us, so this to follow these all things whatever this mother had said to us. ठीक है, इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, एंड देन आफ्टर वी कैन टेक केयर आवर अर्थ. एंड हम इस पृथ्वी पर रहते हैं बिकॉज अर्थ इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज, एंड इफ़ द रिसोर्सेज जो यहाँ पे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं अगर वो ख़त्म हो जाएं तो इट विल बी वेरी वेरी टफ एंड हार्ड फॉर अस टू फॉर द सर्वाइवल. सो हमें किसी भी चीज़ को बहुत अधिक हम कुछ वेस्ट ना करें, चीज़ों को ध्यान में रख के इस्तेमाल करें, और अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ग्रीनरी का ख्याल रखेंगे तो ही हम एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं. सो रीड दिस चैप्टर एंड लर्न हाउ कैन यू यूज़ दिस 3R strategy. Okay.